Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant Pawan Gaukar, and yes, guys, business organizations we have started already. Rather, let's resume business organization chapter. हमने कौन सी कंपनीज कर ली थी? If I may ask you, कौन सी कंपनीज कर ली थी? Sir, we have done some companies like हमने बजाज कर लिया था, हमने अदानी कर लिया था, हमने एशियन पेंट्स कर लिया था, एक्सिस बैंक we done with, and Airtel we did. Am I right? In the last lecture? कुछ याद है थोड़ा थोड़ा? Can anyone tell me what's the name of the company Adani जो हमने पढ़ा है? Anyone? कंपनी का नाम? Correct. Apsis. दुबे जी, belated happy birthday. Tell us, Apsis का full form क्या है? Adani, Adani Port and Special Economic Zone. Perfect. So guys, we move ahead with the company overviews, and let's get started with Bharat Petroleum. ठीक है? Bharat Petroleum, have you seen this company? Have you seen this logo? Have you seen its outlets? Bharat Petroleum के कहां देखे आपने? कहां देख लिया आपने भाई? सर पेट्रोल पंप्स पे हमने देखा है, तो बेसिकली दे डील इन ऑयल. लेट्स मूव अहेड कि बीपीसीएल क्या क्या करता है. द नेम ऑफ द कंपनी इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इसलिए कहते हैं इसको बीपीसीएल. द इनकॉर्पोरेशन ईयर इज 1952. ओनरशिप ग्रुप इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हेडक्वार्टर्स इज मुंबई महाराष्ट्र. चेयरमैन इज मिस्टर डी राजकुमार and MD and CEO is Mr. K. Padmakar. CFO is Neelakanta Pillai Vijay Gopal. All right. So, guys, yeah, that's the leadership group, and this is the basic history of the company that when it was incorporated. तो guys, क्योंकि क्लास के एंड में छोटा सा क्विज है, तो मैं आपसे आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि जो जो आपको ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आप एक छोटा सा एक स्क्रिबल करके एक पेज पे लिख दो, ताकि आपको आखिर के क्विज में हेल्प हो जाए. I just hope it helps. All right. So guys, let's check out the introduction of the company. BPCL is an Indian state-controlled oil and gas company. What do you mean by this Indian state control? यानी क्या कहना चाहते हैं वो? Indian state control यानी इसका मतलब वो ये कहना चाहता है that it is owned by the government of India. Yeah, it is owned by the government of India. The corporation operates two large refineries of the country located at Mumbai and Kochi. Bharat Gas has been a pioneer in more ways than one, churning out several innovative customer-centric offerings. एक minute. Bharat Gas has been a pioneer बोल रहा है. What do you mean by the word pioneer? Anyone? Pioneer. What do you mean by this word pioneer? Come on, it's easy. Pioneer means the one who tries to do something first. So generally pioneers यानी innovators. Generally pioneers यानी innovators. Pioneers in innovative customer-centric offerings. What do you mean by customer-centric? What do you mean by the word customer-centric? Come on, guys. Correct. Customer oriented, जिसमें the main area of concern, the main concentration is customer. So guys, customer centric offerings such as LPG cylinders and mini LPG cylinders. So guys, mini LPG cylinders लेके आए वो लोग. अगर आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज होगा, आपका थोड़ा ध्यान घर पे ध्यान रहता है, तो मुझे बताइए हमारे घर का जो सिलेंडर है कितने केजी का होता है? एनीवन? 500 किलोग्राम का सिलेंडर होता है. 500 किलोग्राम सिलेंडर उठाएंगे कैसे 500 किलो का सिलेंडर? इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारे घर पे जो होता है वो होता है 14.2 केजी का सिलेंडर. संदीप बिनवाल भाई 30 किलो का सिलेंडर नहीं होता है, उठाएंगे कैसे उसको? 30 केजी इज अ लॉट ऑफ वेट. सो गाइस, जो ब्लू कलर के सिलेंडर्स होते हैं वो कमर्शियल के होते हैं,
तो कमर्शियल के सिलेंडर्स तो सभी लाते हैं, 14.2 केजी भी सभी लाते हैं, भारत गैस, एचपी, इंडेन ये लोग भी देते हैं, लेकिन ये 5 केजी और 2 केजी वाले सिलेंडर्स भी बीपीसीएल ने लाया है, एंड दिस इज इनोवेटिव, दिस इज वेरी इनोवेटिव फ्रॉम देयर एंड. सो गाइस, एलपीजी सिलेंडर्स एंड मिनी एलपीजी सिलेंडर्स भी बीपीसीएल ने लाए हैं. तो 24/7. सो गाइस, जिनको क्लिक नहीं होता है ये सारी चीजें, जिनको क्लिक नहीं हुई, कोई बुरा फील करने की जरूरत नहीं है. अब तक नहीं आता, हमारी गलती नहीं है, लेकिन अब पढ़ाने के बाद भी नहीं आता तो फिर हमारी गलती होगी. ओके, सो the 24/7 services provided by Bharat Petroleum Aviation Fuel Services. What do you mean by this 24/7? 24/7 यानी क्या? Sir, aviation fuel. Aviation fuel is what? Fuel for the airplanes. So 24/7, yeah. Bharat Petroleum Aviation Fuel Services makes it the preferred supplier for all domestic and international airlines in India. So guys, India की जो सारी airlines है, mostly BPCL से 40% जो market share है, वो BPCL का है. Then 40% of the international volume in India, 40% of the international volumes in India are fueled by BPCL plane services. Their presence in defense sector is equally strong. Bharat Petroleum is the only oil company in India to have equity stake in the first greenfield airport at Cochin International Airport Limited. So guys, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, और कोचीन का जो एयरपोर्ट है इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है. इक्विटी स्टेक होल्ड करता है. हु डज इट? बीपीसीएल. तो गाइस, दूसरी कोई कंपनी का किसी एयरपोर्ट में स्टेक है ऐसा नहीं सुनने मिलता है. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और एक होता है ब्राउनफील्ड. कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दो नॉमेनक्लेचर्स है इनके, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड. तो अगर पहले कोई भी नामो निशान नहीं था, अगर पहले कोई भी नामो निशान नहीं था और जीरो से स्टार्ट किया हुआ है तो इसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं. और अगर थोड़ा बहुत एयरपोर्ट बना था और फिर हमने उसको रेनोवेट किया, थोड़ा बेटर बनाया, तो इसको ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं. तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आगे बढ़ोगे आपको ये सारे कंसेप्ट्स के बारे में सिखाया जाएगा. और तो गाइस, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इज द वन which is not constrained by prior work. कोई पुराना काम होता ही नहीं है, जीरो से शुरुआत होती है. It is constructing on unused land where there is no need to remodel or demolish an existing structure. तो ऐसे प्रोजेक्ट जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड. काफी कुछ पहले से बना होता है, थोड़ा बहुत रेनोवेट करके अगर हम लोग कुछ कर जाए तो इसको ब्राउनफील्ड कहते हैं. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ इंडिया जिसके अंदर भारत पेट्रोलियम का इक्विटी है. चलो आगे बढ़ते हैं, कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं. Bharat Petroleum Corporation Limited was incorporated in 1952 as a private limited company with the name Burma Shells Refineries Limited. The company began its work on the marshland of Trombay at Bombay. The refinery on 454 acres of land at village Mahul went on stream on 30th Jan 1955, 1 year ahead of the schedule. In January 1976, Burma Shell group of companies were taken over by the government of India to form Bharat Refineries Limited. तो बेसिकली ये एक पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और गवर्नमेंट को जैसे ही कोई सक्सेसफुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिखाई देती है, गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेती है. सो दिस हैपेंड विथ बुरमा ऑयल रिफाइनरीज आल्सो. And in August 1977, the company was renamed as BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited. The company was also the first refinery to process newly found indigenous crude Bombay High in the country. यानी इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल मिलना नामुमकिन था, पता ही नहीं था हमको कि इंडिया में भी अवेलेबल है. भारत पेट्रोलियम ने पहली बार ढूंढा. फिलोसॉफी क्या है इनकी? लेट्स चेक आउट द फिलोसॉफी. To be a model corporate entity with social responsibility committed to energizing lives through sustainable development. कोई भी गवर्नमेंट कंपनी आप देखोगे, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, उनके विजन में आपको एक चीज जरूर मिलेगी फिलोसॉफी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एनीवन, एनी क्लू? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रिपल पी सिखाया मैंने आपको. डू यू रिमेंबर ट्रिपल पी? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट. नेक्स्ट जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए. ऐसे तरीके से बिजनेस करना इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हर गवर्नमेंट कंपनी की फिलोसॉफी में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूर मिलेगा. नेक्स्ट, मिशन.
to create a positive impact in the communities where it operates, to transform 150 villages from water scarce to water positive. So guys, this is good. 150 villages में ये पानी पहुंचाने का या फिर पानी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का उन्होंने प्रोजेक्ट लिया है. To enable education of more than 10 lakh children. This is also very good. That's the mission. To enable a resource of expert panels on issues pertaining to our thrust areas. तो expert panel बनाएंगे कि कहां से हमें और ऑयल मिल सकता है और पेट्रोलियम मिल सकता है. And to encourage employee volunteering through a corporate culture and having minimum of 10% employee volunteering in next 5 years. So guys, हमारे जितने भी employees है उसमें से 10% लोग ये हमारे प्रोजेक्ट्स में, फिलोसॉफिकल प्रोजेक्ट्स में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने में कंट्रीब्यूट करेंगे. पोर्टफोलियो, द कंपनी बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 7 एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. एसबीयू क्या होता है? सीए इंटर में आप पढ़ोगे. ओ, एसबीयू क्या होता है? ये कब पढ़ोगे आप? सीए इंटर में पढ़ोगे. लेकिन बोलो, सीए इंटर में जाओगे क्या? बहुत जल्दी बोलो, सीए इंटर में जाओगे क्या? हाँ, तो गाइस सीए इंटर में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता हूं वो सब्जेक्ट. आपको स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है हम लोग इंटर में पढ़ेंगे. ठीक है, वादा करो मुझसे इंटर में मिलोगे. ठीक है. एसबीयूज लाइक रिटेल लुब्रिकेंट्स. ओके, सॉरी, रिटेल में इनका बिजनेस है. ये बेचते हैं क्या पेट्रोल? किसी प्लेन वालों को बेचते हैं भारत पेट्रोलियम? सिर्फ प्लेन्स को, एविएशन इंडस्ट्री को ही सप्लाई करते ना, आम इंसान को पेट्रोल नहीं देते ना ये लोग. क्या कहते हो? देते हैं ना सर. भारत पेट्रोलियम की पेट्रोल पंप मिल जाएंगे आपको. इसी को कहते हैं रिटेल. देन लुब्रिकेंट्स, दैट इज ऑयल. देन एविएशन, दैट इज फॉर प्लेन्स, एरोप्लेन्स. रिफाइनरी, गैस, आईएनसी एंड एलपीजी. दे आर पॉपुलर लॉयल्टी प्रोग्राम्स लाइक पेट्रो कार्ड एंड स्मार्ट फ्लीट. सो गाइस, ऑलमोस्ट हर कंपनी के अब ये पेट्रो कार्ड्स और स्मार्ट फ्लीट कार्ड्स आ चुके हैं. स्मार्ट फ्लीट कार्ड्स एंड पेट्रो कार्ड, इससे कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलता है जिसके कारण आपके कस्टमर जुड़ जाते हैं. चलो और देखते हैं. Bharat Petroleum operates in the following refineries. Bombay Refinery located near Mumbai Refinery located near Mumbai, Maharashtra. It has capacity of 13 million metric tons per year. Kochi Refinery located near Kochi, Kerala. It has capacity of 9.5 million metric tons. Bina Refinery and Numaligarh. एक मिनट, थोड़ा सा ज्योग्राफिकली हम लोग देख लेते हैं. So सबसे पहले तो इनकी मुंबई की रिफाइनरी, करेक्ट. सेकंड, केरला के अंदर कोची की रिफाइनरी. थर्ड, बीना. वेयर इज बीना? बोलो, स्टेट बोलो, स्टेट बोलो जल्दी. एमपी. एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी. सो ये 4 रिफाइनरीज है. मैंने आपको मैपिंग भी कर दी है. आई जस्ट होप आपको याद रहे. ऐसे ज्योग्राफिकली और थोड़ा मैपिंग के थ्रू सिखाया जाए तो स्कूल की नॉस्टैल्जिया फील भी आ जाती है और कम से कम 4 अटेम्प्ट तक याद रहता है ये स्टूडेंट्स को. सो सॉरी, अटेम्प्ट बोल दिया मैंने. आ जाओ. So, Bina Refinery located near Bina, Sagar district, Madhya Pradesh. It has capacity of 6 million metric tons per year. This refinery operates by Bharat Oman Refineries Limited, a joint venture between Bharat Petroleum and Oman Oil Company. And Numaligarh Refinery located near Numaligarh, Golaghat district, Assam. It has capacity of 3 million metric tons per year. So guys, 4 refineries है. ठीक है, 4 refineries है. मुंबई, कोची, बीना एंड नुमालीगढ़. गाइस, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इस पे ध्यान मत दो, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन. बिजनेस इन न्यूज, बीपीसीएल रैंक 792nd on the Forbes world's largest public corporation list. BPCL received special award from Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister of Petroleum, Natural Gas and Steel, for the contribution to facilitate bulk LPG tank trucks ownership by SC and ST entrepreneurs. So SC और ST entrepreneurs को बिजनेस करने में, बल्क एलपीजी टैंक के ट्रक्स प्रोवाइड करने में बीपीसीएल ने हेल्प किया. इसके लिए इनको स्पेशल अवार्ड मिला है. ऑल्सो बीपीसीएल रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस स्टार पीएसयू. व्हाट इज पीएसयू रे? पीएसयू क्या होता है? एनीवन?
Perfect. Very good, Abhishek. Public sector undertaking. BPSL received the prestigious Star PSC Award from Business Standard at the annual awards for corporate excellence on 31st March 2018. पढ़ो तो ये कौन सा अवार्ड है, बोलो तो जरा. पिकॉक नहीं होता है स्वीटी, वो पिकॉक होता है. Now, BPCL was awarded on 25th October 2018 with Golden Peacock Award 2018 for excellent corporate governance in a glittering event in London. So guys, Golden Peacock Awards दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी मिला है, दूसरी गवर्नमेंट कंपनीज को भी मिला है. इसके ऊपर ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है. इस पे क्वेश्चन आ सकता है. चलो, थोड़ी सी उन्होंने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है. डू यू नो दैट इंफॉर्मेशन बबल नाम का एक कंसेप्ट है. आपके मॉड्यूल में या मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा ये बार बार. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, बट बीपीसीएल को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करता, कोई एडेड इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. जैसे हमने जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने एसईजी के बारे में, एसईजेड के बारे में एक्स्ट्रा चीज पढ़ी है, वैसे इंफॉर्मेशन बबल है महारत्न और नवरत्न के को लेके. डू यू नो दैट ह्यूज कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट कंपनीज, are tagged with Navratna, Maharatna and Mini Ratna. Navratna, Maharatna and Mini Ratna. एक मिनट. What do you mean by the word Ratna? Ratna. What do you mean by the word Ratna? नहीं पता, नहीं आती इतनी हिंदी. तुम लोग आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हो. रत्ना मीन्स ज्वेल. रत्ना मीन्स ज्वेल. हाँ, आप डायमंड्स भी कह सकते हो या प्रेशियस स्टोन. करेक्ट अनुश्रिया, परफेक्ट, वेरी गुड ओम, वेरी गुड प्रणति. सो नवरत्ना, महारत्ना और मिनी रत्ना, मोस्टली हम हमारे सिलेबस में जो भी गवर्नमेंट कंपनीज पढ़ने वाले हैं, मोस्टली दे आर इधर नवरत्ना और मिनी रत्ना. So, as of October 2021, there are 10 Maharatnas and 14 Navratna companies in India. So, guys, October 2021, as on 2021 October, ठीक है, हमारे पास कितनी महारत्ना है? 10 महारत्ना एंड 14 नवरत्ना कंपनीज इन इंडिया. एमसीक्यू गोल्ड, और आज के क्विज में तो मैं जरूर पूछूंगा, ठीक है. पेपर लीक हो गया तुम्हारा. वी आर अबाउट टू डिस्कस बीपी भारत पेट्रोलियम बिलो विच इज अ महारत्न कंपनी. तो जो हम लोग भारत पेट्रोलियम कह रहे हैं, जो हमने अभी पढ़ा है, इट इज अ महारत्न कंपनी. ऑल गवर्नमेंट कंपनीज शैल डिस्कस इन चैप्टर महारत्नस और नवरत्ना. तो जो भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनीज पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में, या तो वो महारत्न है या तो वो नवरत्न कंपनी है. इन द बिगिनिंग वी टॉक्ड अबाउट निफ्टी 50. ऑल दिस कंपनीज आर आल्सो पार्ट ऑफ निफ्टी 50. वो निफ्टी 50 क्या होता है सर? ये सारी कंपनी लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे. Further, as we have already mentioned, to learn about what Maharatna and Navratna are, you must be curious enough to search about them. So guys, अगर आपको लगता है और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि महारत्ना और नवरत्ना क्या होते हैं, तो आप ढूंढ सकते हैं. फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. अगर किसी कंपनी को महारत्ना की कैटेगरी में आना है, ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी. तो अगर आपको महारत्ना कंपनी में आना है तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए. तो भारत पेट्रोलियम लिस्टेड है. उसका एवरेज टर्नओवर 20,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए. उसका एवरेज नेट प्रॉफिट 2.5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए. और उसका नेटवर्थ 10,000 करोड़. सो गाइस, जो भी हमने बोला 20 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़ का टर्नओवर, एवरेज प्रॉफिट 2.5 करोड़ नहीं, 2,500 करोड़ का टर्नओवर उससे ज्यादा होना चाहिए. कम से कम इतना तो होना ही चाहिए. और एवरेज नेटवर्थ 10,000 करोड़. ट्रस्ट मी ऑन दिस. This is not for your exam. This is just to tell you कि नवरत्न की कैटेगरी में आना है तो आपका क्राइटेरिया क्या है, ये आपको मुझे बताना था. So that was all about भारत पेट्रोलियम. कोई डाउट है आपको भारत पेट्रोलियम में? या shall we move ahead with the next company, guys? Tell me. Shall we? All right. Arnav, how is your health now? All perfect. Dengue sucks. All right. We move on with the next company, that is Cipla Caring for Life. तो जैसे हम लोग कहते हैं Cipla, आपने तो जरूर इस कंपनी के बारे में सुना होगा. Cipla क्या बनाती है? च्यवनप्राश. Correct. They are one of the pharmaceutical giants. Yeah, pharma company है ये. Indian है क्या Cipla? Just asking. Cipla Indian है.
Pranati, very admirable that you have switched on your video. Very admirable, beta. Well done. बाकी लोग तो सो के पढ़ रहे होंगे. I'm very sure. हम सो के पढ़ रहे हैं बस. Chill. Okay. चलो. Let's talk about Cipla Caring for Life, incorporated in the year 1935. हम लोगों को लगता है अभी कल परसों ही पैदा हुई है. 1935 से है. Headquarters is in Mumbai and the chairman. ठीक है. अच्छा, सिप्ला को कोई फुल फॉर्म होगा क्या? By any chance? सिप्ला का कोई फुल फॉर्म होगा? सर हो गया ना, सिप्ला बराबर है ना. एक मिनट. जब ये इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी 1935 में, तो इसका नाम क्या था? द केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज वाज द नेम ऑफ द कंपनी. लेकिन इतना सारा बार बार कौन बोलेगा, इसलिए फिर इसको कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया सिप्ला में. द चेयरमैन ऑफ सिप्ला इज मिस्टर Y.K. Hamid. The present head and MD and CEO is Mr. Umang Vora, and CFO is Mr. Kedar Upadhyay. So Cipla is what? Cipla का introduction देख लेते थोड़ा. Cipla Limited is the leading medicine manufacturer in India. The company has about 1,500 pharmaceutical products in more than 60 therapeutic categories. Some are sold domestically, while the rest reach international markets in more than 150 countries. So guys, Cipla को छोटा कंपनी ना समझे. Just because आपको easily available है does not make it a small company. कितनी कंट्रीज में प्रोडक्ट बेचते हैं अपना? 150 कंट्रीज. Samsung you feel is a big company, right? Samsung, heard about Samsung? The Korean giant. हमें ऐसा लगता है Samsung बड़ा कंपनी है. Samsung का प्रोडक्ट सिर्फ 70 कंट्रीज में अवेलेबल है. Cipla, when it comes to reach, is bigger than Samsung. So guys, we move on. It offers prescription drugs for all kinds of ailments. आर्थराइटिस में क्या होता है? हड्डियों का दर्द. हाँ, कैंसर, डिस्प्रेशन पता है तुमको? डिस्प्रेशन ना ही पता है तो अच्छा है. डिप्रेशन, इसके लिए भी ड्रग्स है इनके पास. एज वेल एज ओवर द काउंटर ड्रग्स फॉर कोल्ड, ओरल हाइजीन एंड स्किन केयर. तो ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ओवर द काउंटर ड्रग्स? जो हाथों हाथ बिक जाते हैं, ना ऐसे भैया क्रोसिन का पत्ता दे दो तो वो 10 गोलियां दे देते हैं अपने आप. तो इसको क्या कहते हैं? ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है. कभी कोई मेडिसिन मिलती है कैसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के? कुछ खरीदते हो तुम? इंडियंस तो एकदम माहिर होते हैं, भैया पत्ता दे दो. आधे तो अपने खुद ही डॉक्टर है, कोई बात नहीं. ओवर द काउंटर ड्रग्स, then over the counter drugs for colds, oral hygiene and skin care. Cipla leads the domestic retail pharmaceutical market. The company also makes bulk drugs, agrochemicals and animal products. So they are into this. History अगर हम लोग देखें तो Cipla की history. Cipla was founded as a chemical industrial pharmaceutical laboratories by Khwaja Abdul Hamid in 1935. The name of the company was changed to Cipla on 20th July 1984. In the year 1985, US FDA काफी सारी मेडिसिन जो होती है. तुमने नाइस नाम का मेडिसिन सुना है कि इंडिया में? नाइस सुना है क्या? नाइस, हैव यू एवर हर्ड? यू मस्ट हैव हर्ड. बहुत ही लोकली बहुत डॉक्टर्स नाइस प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि नाइस खा लो सही हो जाएगा सब. नाइस इज अ वेरी वेरी फेमस मेडिसिन इन इंडिया. इट इज बैंड बाय यूनाइटेड स्टेट्स का FDA, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत ही स्ट्रिक्ट है वो, बट इंडिया में काफी सारी बैंड मेडिसिन आज भी चलती है. लेकिन सिप्ला की काफी मेडिसिन को यूएस के FDA ने अप्रूव कर रखा है. आई मीन दे आर सो गुड विद इन टर्म्स टू क्वालिटी. यूएस FDA अप्रूव्ड द कंपनी बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. फिलोसॉफी क्या है इनका? सिप्ला हैज डेवलप्ड गुड पॉजिटिव इमेज by providing support to cancer patient by introducing drugs at low cost. So guys, is it good? Cancer is so fatal. यानी कैंसर हो गया किसी को तो ऑलमोस्ट 70% केसेस में मरना तय है. तो guys, लो कॉस्ट में ड्रग्स बनाने की कोशिश की जा रही है. स्लोगन इज केयरिंग फॉर लाइफ. विजन to be the first global biotech company to provide high quality products at affordable prices that will enable access for millions of patients worldwide by the year 2025. So क्या विजन, क्या बहुत अच्छा विजन है? क्या कहते हो? व्हाट डू यू थिंक? क्या बहुत अच्छा विजन है कि 2025 तक हम लोग पूरे वर्ल्ड को, पेशेंट्स को 2025 तक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में ड्रग्स
हम लोग देना चाहते हैं. Now there are companies like Cipla and there are medicine manufacturers like Medicines of Dolo जिन्होंने पैसे खिला खिला के प्रिस्क्रिप्शन करवाया डॉक्टर्स से. कोई नहीं, जाने दो. Mission Cipla's mission is to be the leading global healthcare company which uses technology and innovation to meet everyday needs of the patient. So guys, vision is always about, आज 2022-23 में ये लोग 2025 की बात कर रहे हैं, तो विजन इज ऑलवेज अबाउट द, बोलो, विजन इज ऑलवेज अबाउट द future. Mission is always about the present. There you go. So mission to be the leading global healthcare company which uses tech and innovation to meet everyday needs of all the patients. Portfolio देख लेते हैं इनका. Cipla sells API, active pharmaceutical ingredients to other manufacturers, as well as pharmaceutical and personal care products. API बोल रहा है, क्या बोल रहा है? API, active pharmaceutical ingredients. क्रोसिन सुना है आपने? अगर तुमने क्रोसिन नहीं सुना तो फर्जी इंडियंस हो तुम. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें क्रोसिन की, तो क्रोसिन कब ली जाती है सर? जब ब्रेकअप हो जाए तब. कब ली जाती है क्रोसिन? फीवर में क्रोसिन ली जाती है. हाँ, सर्दी में भी क्रोसिन ली जाती है, फीवर में भी क्रोसिन ली जाती है, बॉडी एक में भी क्रोसिन ली जाती है, ब्रेकअप में भी, हर जगह क्रोसिन ही चलता है इंडिया में. एनीवे, सो गाइस, फीवर कम करने वाला एक ही मेडिसिन है, दैट इज क्रोसिन. ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली एंड रिडिकुलसली फॉल्स. क्रोसिन के अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसके कारण फीवर कम होता है. वुड यू लाइक टू नेम दैट? करेक्ट. सो हर फीवर कम करने वाली मेडिसिन में पैरासिटामोल होता है, एंड दिस पैरासिटामोल इज नथिंग एल्स बट एपीआई. जो पैरासिटामोल होता है ना, वो होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. तो गाइस, काफी सारी कंपनीज को ड्रग किसी एक कॉज के लिए होता है, लेकिन ड्रग के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसके कारण वो डिसीज को ईज कर देता है, उसको कहते हैं एपीआई. समझा एपीआई का मतलब? यानी काफी सारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एपीआई सेल करता है. सो एपीआई सेल करता है सिप्ला टू अदर मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज फार्मास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एंटी डिप्रेसेंट जिसका नाम है एसिटोलोपराम, देन लामिविदीन, अरे डॉक्टर बना के छोड़ेंगे तो. सो एसिटोलोपराम, लामिविदीन and fluticasone propionate. It is the world's largest manufacturer of antiretroviral drugs. Cipla currently manufactures more than 200 generic and complex API. So they make more than 200 generic and complex API. So guys, I hope API समझ गए आपको. 200 से ज्यादा API बनाते हैं ये लोग. Cipla की रैंक 460th on the Forbes World's Best Employees List 2021. Meditap Specialties Private Limited, a wholly owned subsidiary of company, acquired 75% stake in Mapfram Private Limited. Cipla Limited has acquired in October 2019 novel and patented anti-infective product Elorus and Venus Remedies Limited from Venus Remedies Limited for the Indian market to further strengthen its presence in branded Indian critical care space and as a part of agenda to contribute to fight against antimicrobial रेजिस्टेंस. एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस क्या होता है? बनाओगे थोड़ा डॉक्टर तुम लोगों को? बनाया जाएगा? काफी सारे इंडियंस ना मजे के लिए दवाई खाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. थोड़ा सा भी अगर अच्छा नहीं लग रहा तो क्रोसिन खा लेते. होते हैं क्या ऐसे लोग? दिस इज नॉट राइट. काफी बार ऐसा होता है कि अननेसेसरी मेडिसिन खाने से हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, और फिर जब इस मेडिसिन की सही में जरूरत पड़ती है तब ये मेडिसिन हमारे बॉडी पे कोई भी इंपैक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं करते. तो ऐसा जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है मेडिसिन के खिलाफ, उसके लिए भी ड्रग्स बनाने की कोशिश कर रही है सिप्ला. देन द 82-year-old चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल मेजर सिप्ला, prominent scientist and businessman Yusuf Hamid, has been made an honorary fellow of prestigious body comprising of many of the world's most eminent scientists in 2019 list of new fellows of the UK's Royal Society. So guys, इस कंपनी के जो 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 फाउंडर है यूसुफ हमीद,
इस कंपनी के, नॉट द फाउंडर बट द चेयरमैन मिस्टर यूसुफ हमीद, वाई के हमीद, जो उन्होंने बोला है इनको ऑनररी मेंबरशिप मिली है किसकी? यूके's रॉयल सोसाइटी की. सो गाइस इट्स अ बिग डील फॉर द लीग ऑफ एलिट्स. सो गाइस सिप्ला केयरिंग फॉर लाइफ बीइंग द स्लोगन. एक एग्जाम में केयरिंग फॉर लाइफ ये कौन सी कंपनी का स्लोगन है, ऐसा सवाल पूछा जा चुका है. सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट सिप्ला. So that was all about Cipla. We move ahead with the next company, and that company is CIL, Coal India Limited. All right. So Coal India Limited, आप लोगो देख लो, क्या लोगो बेहतरीन है एकदम, बोलो क्या लोगो एकदम जबरदस्त है. व्हाट से एकदम ही बहुत सारा डिजाइनिंग पे खर्चा किया होगा, वीएफएक्स वगैरह डाला है लोगो बनाने में. क्या लगता है तुमको? जी नहीं, जो भी लोगो एकदम ही बेसिक लेवल के लोगोज होते हैं, समझ लेना गवर्नमेंट कंपनी ही है. और हम लोग कोल इंडिया, जैसे बीपीसीएल का भी लोगो एकदम अप्रतिम लोगो है. क्या कहते हो आप? एकदम जबरदस्त. क्या क्या इसमें आर्टिस्ट्री है. यानी मुझे लगता है कि जो भी पहला एमडी होगा कंपनी का, उसके बच्चे ने बनाया ये. एनीवे, फिर भी थोड़ा विजन देखते हैं बीपीसीएल का. देखो तो इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है आपको इस भारत पेट्रोलियम के लोगों में? क्या नजर आ रहा है? एनी क्लू? थोड़ा देख लो, थोड़ा सा विजन है उनके पास भी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी. सर ये तो दूरदर्शन है सर, गोल दूरदर्शन है सर ये तो. करेक्ट अर्नब, इट्स करेक्ट. ऑयल के ड्रॉप से ही है. सो काफी सारा विजन है इसमें. कोल के अंदर ब्लैक कलर का डायमंड दिखाने की कोशिश की है इन्होंने. दिस इज व्हाट आई कुड एपरेंटली मेक, यानी ये बेस्ट मेरा गेस है. कोल में ये लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल्सो मैंने आपको बताया ना, हम लोग जो गवर्नमेंट कंपनी, ऑफ कोर्स लोगों से पता चल जाएगा आपको. नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या हमने गवर्नमेंट कंपनी, किस टाइप की गवर्नमेंट कंपनीज पढ़ने वाले हैं हम हमारे सिलेबस में हमने डिस्कस किया है. कौन सी दो टाइप्स बताई थी मैंने आपको? वैसे तो तीन बताई थी. हाँ करेक्ट, नवरत्न एंड महारत्न. गाइस कोल इंडिया लिमिटेड इज ऑल्सो अ महारत्न कंपनी. तो जस्ट स्टिक इट ऑन द फेस, एकदम लिख दो वहां पे कि कोल इंडिया लिमिटेड, चैप्टर के मुंह, कंपनी के नाम के मुंह पे लिख दो महारत्न कंपनी. तो चलो देखते हैं. कोल इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1975, ओनरशिप ग्रुप इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लोगों से पता चल जाता है. हेडक्वार्टर्स इज इन कोलकाता. सो मोस्टली सब लोगों को हेडक्वार्टर्स मुंबई ही लगता है. बाय डिफॉल्ट मुंबई में घुस जाते हैं सब लोग. ठीक है, पता नहीं क्यों. थोड़ा सा इसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा. स्पेशली आप मुंबई वालों को याद मत करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुंबई ही रहता है आपका आंसर. जिसका मुंबई नहीं है उसको आप क्लिक करने की कोशिश करना जरूर. Present head CMD and the chairman is Mr. Pramod Agarwal. He is an IAS officer apparently. And the CFO is Mr. Sanjeev Soni. Coal India Limited का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इट्स एन इंडियन स्टेट कंट्रोल कोल माइनिंग कंपनी. कैसे इंडियन स्टेट कंट्रोल बोलते ही क्या क्लिक हो जाना चाहिए आपको? दैट इट इज अ government company. It is the largest coal producer company in the world. It contributes about 84% of coal production in India. And Government of India owns it and controls the operation through Ministry of Coal. In April 2000, in April 2011, CIL was conferred कौन सा स्टेटस? कौन सा स्टेटस मिला है? बोलो. महारत्न स्टेटस. और ये कब मिला स्टेटस? अप्रैल 2011. सो गाइस, आप जहां भी कुछ अगर अपडेट कर रहे हो तो ये जरूर करिएगा कि ये कंपनी महारत्न है और इस डेट पे इसको महारत्न का स्टेटस मिला है. नहीं, मुझे अगर इस चैप्टर में से भी अगर 4-5 में से 5 या 6 क्वेश्चन है तो 6 में से 6 चाहिए, तो मैं ये मेहनत करूंगा. अगर मुझे इस चैप्टर से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं मैथ्स से मार्क्स ले आऊं, अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं मैथ्स से मार्क्स ले आऊं या फिर मैं लॉ में बहुत अच्छा लिख के मार्क्स ले आऊं, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. सो इट इज ऑपरेटिंग थ्रू 82 mining areas. CIL manages 200 other establishments like workshops, hospitals, etc. Further, it also owns 26 technical and management training institutes, 102 vocational training institutes. It commands, let's check it out. इस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है? मार्केट शेयर देखो कितना है. इट कमांड्स नियरली 74% ऑफ इंडियन कोल मार्केट. तो वैसे तो मोनोपोली के एग्जाम्पल्स हमें ज्यादा दिखते नहीं है,
मोनोपोली के एग्जांपल्स काफी कम ही होते हैं, लेकिन 74% इज अ लॉट ऑफ परसेंट। देखते हैं कंपनी की हिस्ट्री। राइट, कंपनी की हिस्ट्री नहीं है ना, विजन आ जाओ। टू इमर्ज एज अ ग्लोबल प्लेयर इन द प्राइमरी एनर्जी सेक्टर, कमिटेड टू प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी टू द कंट्री बाय अटेनिंग एनवायरमेंट, सॉरी है हिस्ट्री, चलो देखते हैं हिस्ट्री। सो कंपनी हिस्ट्री, जस्ट अ मोमेंट। So, nationalization of coal industry in India in the early 70s was the fallout of two related events. In this first instance, it was the oil price shock which led the country to take up a close security scrutiny of its energy options. So, guys, oil price shocks 1970s में क्या हुआ था, जो यूएई अरब कंट्रीज थी, उन्होंने प्राइस के रेट्स, ऑयल के रेट्स एकदम बढ़ा दिए थे, एंड इंडियन गवर्नमेंट कुड नॉट अफोर्ड इट। तब हमें ध्यान में आया कि यार नो, we have to be self-sufficient when it comes to energy requirements. So, a fuel policy committee set up for the purpose identified coal as the primary source of commercial energy. Secondly, the much needed investment for growth of this sector was not forthcoming, with coal mining largely in the hands of private sector. So guys, यहां से nationalization हुआ कोल का। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है, ठीक है, कि कोल का कैसे बिजनेस आगे बढ़ता है या कैसे आगे बढ़ा, तो इसके लिए आप गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी देखें, पार्ट 1, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो। फिलोसफी देखते हैं। विजन टू इमर्ज एज अ ग्लोबल प्लेयर इन द प्राइमरी एनर्जी सेक्टर, कमिटेड टू प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी टू द कंट्री फॉर अटेनिंग एनवायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम माइंड टू मार्केट। इसके बारे में आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि एनर्जी सिक्योरिटी और गवर्नमेंट कंपनी के विजन में आपको हमेशा मिलेगा ये वर्ड सस्टेनेबल ग्रोथ। सो व्हाट डू मीन द एनर्जी सिक्योरिटी? एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब इंडिया शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न्ड। मिशन to produce and market the planned quantity of coal and coal products efficiently and economically in an eco-friendly manner with due regard to safety, conservation and quality. Portfolio: Coal India Limited produces coal through 7 of its wholly owned subsidiaries: Eastern Coalfields Limited, Bharat Coking Coal Limited, Central Coalfields Limited, Western Coalfields Limited, Southeastern Coalfields Limited, Northeastern Coalfields Limited, Northern Coalfields Limited, Mahanadi Coalfields Limited. So guys, ये देख लो आप, पूरा मैपिंग है कि कौन से जो कोल बेड्स हैं इंडिया के, उसको कैसे मैनेज करता है. सो गाइस, या Northern Coalfields Limited, Eastern Coalfields Limited, Central Coalfields Limited, Bharat Coking Coal Limited, Mahanadi and Southeastern. So guys, अगर आप देखोगे कोल ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में अगर आप देखोगे, एंड दिस इज बिहार, झारखंड एंड सम थोड़ा सा पार्ट उड़ीसा का. दिस इज द मेजर बेड ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन. ऑल्सो महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर एरिया में और आंध्र प्रदेश के अंदर भी थोड़े से बेड्स है when it comes to extraction of coal. So its 8th wholly owned subsidiary is Central Mine Planning and Design Institute Limited, provides exploration, planning and technical support to all 7 production subsidiaries. So guys, जो 8 subsidiary इनकी, ये कोई कोल बेड नहीं है, ये माइन प्लान करने में मदद करती है. पता चला पूरा खोद के रख दिया हमने और वहां माइन था ही नहीं, जम्मू कश्मीर में खोद दिए, अबे था ही नहीं, वहां पे कोल ही नहीं है, खोदोगे क्या? तो गाइस पूरा रिसर्च करती है ये 8 सब्सिडरी उनकी, जो उनको माइन को प्लान करने में मदद करती है. ऑलराइट, ये होली ओन सब्सिडरी क्या होता है? Wholly owned subsidiary, as the name suggests, it's a subsidiary, that is a sub organization of the main part which is entirely owned by the parent company, thus wholly owned. So guys, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को ओन करती है तो उसको wholly owned subsidiary बनाने के लिए उस कंपनी के पास कितने % शेयर चाहिए? करेक्ट, उसे लगेंगे 100% शेयर्स, उसे लगेंगे 100% शेयर्स. So joint venture, CIL has 2 joint ventures. International Coal Ventures Private Limited was formed in 2009 for acquisition of coking coal properties outside India. CIL holds 2/7 of the share in the paid up capital. And CIL NTPC Urja, NTPC सुना है कि तुमने कभी नाम?
कोई बात नहीं, अगर नहीं भी सुना तो। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कोल किससे सप्लाई किया जाता है? थर्मल पावर प्लांट्स को ही कोल सप्लाई किया जाता है मेजरली. सो एनटीपीसी इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. CIL NTPC Urja is a 50-50 JV joint venture between CIL and NTPC formed in April 2010 for acquisition of coal blocks in India and abroad. Business in news. Coal India ranked 770th on the Forbes World's Largest Public Corporation list 2021. CIL has been awarded the CSR winner. Oye, what is CSR? Any clue? Corporate and Social Responsibility Award for Rural Development and Infrastructure at the 6th CSR Impact Awards in 2018-19. CIL was recognized for integrated rural development done in Purulia. So guys, अगर आप देखोगे कोल इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है. बीपीसीएल देखोगे तो बीपीसीएल कितने बच्चों को सिखाना चाहता था? बोलो, टेल मी. कितने? करेक्ट, उनके मिशन में आ रहा है ये. 10 लाख बच्चों को एजुकेट करेंगे, 150 विलेजेस में पानी लाएंगे. सो गाइस ये सब क्या है? दिस इज ऑल इन अ वे सीएसआर. व्हाट इज सीएसआर? कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हर गवर्नमेंट कंपनी हमने कुछ किया है इसकी कोशिश करती है. सीआईएल एक्सचेंज एमओयूज विथ मिस्टर लियोनिड गेनेडोविच पेटुकोव, डायरेक्टर जनरल ऑफ रशियन नेम है वो, द फार ईस्ट एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट एंड फार ईस्टर्न माइनिंग कंपनी ऑफ रशियन फेडरेशन रशिया इन सितंबर 2019. सो गाइस एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनके साथ मिलके और अपने एक्सपोर्ट्स के बिजनेस को बढ़ाना चाहती है कोल इंडिया लिमिटेड, अ महारत्न कंपनी. ऑलराइट, सो वी मूव अहेड विथ येट अनदर. ठीक है, हमने अब तक 3 कंपनीज देख ली है आज. कौन सी? पहली, कम ऑन, भारत पेट्रोलियम, एंड देन मेडिसिन, सिप्ला, एंड अभी हमने देखा CIL. करेक्ट, कोल इंडिया लिमिटेड. नाउ टेल मी डॉक्टर रेड्डीज. डॉक्टर रेड्डीज डॉक्टर रेड्डीज क्या बनाते ही है? फार्मा जायंट इट इज. आ जाओ. डॉक्टर रेड्डीज इनकॉर्पोरेटेड इन 1984. Headquarters is in Hyderabad, Telangana, India. Chairman is Mr. Kallam Satish Reddy, and the CEO is Mr. Erez Israeli. CFO is Mr. Parag Agarwal. Introduction. Dr. Reddy's Lab is an Indian multinational pharmaceutical company. Dr. Reddy's manufactures and markets in the wide range of pharmaceuticals in India. The company has over 190 medication, 60 APIs. कितने API? 60 API. API का example दो. Paracetamol, perfect. 60 API and for manufacturing of diagnostic kits, critical care and biotech products. It strengthened its Indian manufacturing operation by acquiring American Remedies Limited in 1999. This acquisition made Reddy the 3rd largest pharmaceutical company in India after Ranbaxy and Glaxo, with a full spectrum of pharmaceutical products which included bulk drug intermediaries, finished dosages, chemical synthesis, diagnostic and biotech. Philosophy क्या है इनका? ठीक है, API तो हमको पता ही है. Bringing expensive medicine within reach, nice philosophy. Addressing unmet patient needs, helping patients manage disease better. So guys, problem क्या है? दवाई बनाओ, खत्म करो ना. मैं क्या कहता हूं, अभी तो कैंसर के लिए भी मेडिसिन आ गई है ऑलमोस्ट. क्या कहते हो आप? तो मुझे बताओ, हेल्पिंग पेशेंट मैनेज डिसीज बेटर, इसमें भी कौन सा रिसर्च बच गया? सर्दी के लिए हमारे पास मेडिसिन है, खांसी के लिए हमारे पास मेडिसिन है, बुखार के लिए हमारे पास मेडिसिन है. हो गया ना यार. अभी क्या ढूंढ रहे हैं लोग? नो, ऐसा नहीं है. मेडिसिन का एक मेजर प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है मेडिसिन का? सर अफोर्डेबल. अरे अफोर्डेबल है मेडिसिन बहुत. करेक्ट अर्नव. मेडिसिन का एक मेजर इश्यू है साइड इफेक्ट्स. आपने महसूस किया होगा, हम लोग मेडिसिन तो खा लेते हैं. हमारी फेमस मेडिसिन है क्रोसिन के अलावा कॉम्बीफ्लेम. सुना है कि तुमने कॉम्बीफ्लेम? एकदम फेवरेट मेडिसिन है कॉम्बीफ्लेम. ये भी एकदम सेकंड फेवरेट है. सर ये जैसे ही मेडिसिन का आ जाता है, तुम्हारे अंदर आत्मा आ जाती है सर. अजीब सारी चीजें बताने लग जाते हो आप. ठीक है, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स है, इसलिए मुझे ये सब पता है. तो प्रॉब्लम ये है कि हम कॉम्बीफ्लेम खा लेते हैं, तो जिस पेन के लिए हमने कॉम्बीफ्लेम लिए वो तो कम हो जाता है, लेकिन छाले आ जाते हैं मुंह में, अल्सर्स हो जाते हैं. सो अल्सर हो जाना ये क्या है?
इट्स अ साइड इफेक्ट। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिन लेके डिसीज ट्रीट हो जाए, लेकिन उस मेडिसिन से कोई दूसरा साइड इफेक्ट ना हो, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। डॉक्टर रेड्डीज का फिलोसॉफी है ये, एनेबलिंग एंड हेल्पिंग आवर पेशेंट्स टू दैट आवर मेडिसिन आर अवेलेबल वेयर नीडेड, वर्किंग विद पेशेंट टू हेल्प देम सक्सीड। सो काफी सारी मेडिसिन है, जेनरिक एंड ओवर द काउंटर। जेनरिक ड्रग्स के अंदर आते हैं उनके टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल्स एंड टॉपिकल क्रीम्स। व्हाट डू यू मीन बाय टॉपिकल क्रीम्स? जैसे कोई कुछ हो गया आपको, ऐसा थोड़ा सा रैश आ गई यहां पे, तो दो टाइप की मेडिसिन आते हैं, एक तो पेट से आप खा लो एक मेडिसिन, या तो क्रीम लगा लो। तो टॉपिकल क्रीम से ना जो लगाते खाते नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं? ओमेज है, नाइस है, केटोरॉल है, स्टैलमलो है एंड राजो। दीज आर द जेनरिक मेडिसिन। एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन ऑन पेन मैनेजमेंट, डर्मेटोलॉजी, इन्हें पेन मैनेजमेंट, इन्हें दर्द, डर्मेटोलॉजी, इन्हें क्या दे रहे? स्किन स्पेशलिस्ट, ठीक है, जो खाज खुजली होती है यहाँ वहां, उससे रिलेटेड। देन सॉरी, एलर्जी मैनेजमेंट एरियाज एंड गायनोकोलॉजी, लेडीज। तो इसके लिए मेडिसिन हमारे पास सिट्रीन, नाइस जेल, इबुस्लिन एंड नोविगैन। सो ये सारे उनके मेडिसिन है, ये सारे उनके पोर्टफोलियो। बिजनेस इन न्यूज, द कंपनी अनाउंस दैट इट इज एंटर्ड इनटू डेफिनेटिव एग्रीमेंट विद वॉकहार्ट लिमिटेड। ये वॉकहार्ट क्या है? व्हाट इज वॉकहार्ट? वॉकहार्ट, सॉरी, हाँ, वॉकहार्ट इज अ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल चेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर, वॉकहार्ट इज एन इंटरनेशनल chain of hospitals. So, the company announces definitive agreement with Wockhardt Limited to acquire select divisions of its branded generic business in India and a few other international territories of Nepal, Sri Lanka, Bhutan, and Maldives for consideration of rupees 1,850 crore rupees. In 2014, Dr. Reddy's lab was listed among 1,200 of India's most trusted brands according to Brand Trust report. भाई मेडिसिन है, ट्रस्ट तो होना ही चाहिए, क्या कहते हो? क्या कहते हो? मेडिसिन है, ट्रस्ट तो होना ही चाहिए। किसी ने जहर खरीद लिया और मरा ही नहीं, समझ रहे हो? बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी ना फिर यार, जहर भी खा लियो, मरे भी नहीं तुम। सो गाइस, डॉक्टर रेड्डीज पे काफी ट्रस्ट है। एंड डॉक्टर रेड्डीज लैब इनिशिएटेड अ वॉलंटरी नेशन वाइड रिकॉल ऑफ 1 October 2019 all of its ranitide medication sold in US due to confirmed contamination with nitrosidmethylamine above levels established by US FDA, the Food Drug Administration of Federal Agency of United States. तो इन्होंने एक मेडिसिन पूरी मंगा दी गई, नेशन वाइड रिकॉल हुआ, यानी इंडिया के अंदर जो भी ये मेडिसिन थी जिसमें कुछ प्रॉब्लम था, कंटामिनेशन था, वो वापस मंगा ली थी। तो इज इट अ पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट, नो, इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। नो, आपका प्रोडक्ट वापस बुलवा के लिया गया, इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। Dr. Reddy's lab has entered into an agreement to acquire portfolio of 42 approved non-marketed abbreviated new drug applications in US. The value of total addressable market for these products is approximately 645 million for the calendar year ending in December 2018. So guys, yeah, that's that. And rank क्या है डॉक्टर रेड्डीज की? सर, डॉक्टर रेड्डीज की कोई पर्टिकुलर रैंक नहीं है, और कोई पर्टिकुलर रैंक नहीं है डॉक्टर रेड्डीज को लेके। है क्या कोई रैंक? नहीं, कोई उन्होंने पर्टिकुलर रैंकिंग नहीं दी है। हाँ, 1200 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के अंदर आती है। उन्होंने इंफॉर्मेशन बबल के बारे में कुछ बताया आपको? क्या हमने कोल इंडिया का कोई कोई लिस्ट में नाम देखा? कोल इंडिया का रैंक कितना था, देखो तो। कोल इंडिया 770th रैंक था, है ना? फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट। इसके पहले सिप्ला का कोई रैंकिंग था? 460th on the Forbes world's largest, yeah, correct. BPCL का कोई रैंकिंग था? 792nd, बार बार आ रहा है फोर्ब्स। गाइस, इसके बारे में उन्होंने दिया है। Hope you are observing the ranking from global magazine like Forbes that we have mentioned in the news column. This shows that how well a company is ranked on global level. Forbes issues an annual list of 2000 world's largest पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो 2000 की लिस्ट में ये रैंकिंग्स मिलती है आपको। और ये लिस्ट कौन बनाता है? कौन बनाता है ये लिस्ट? कंपाइलेशन का काम किसका है? फोर्ब्स का काम है ये। वी मूव अहेड,
with the next company, that is HDFC. We understand your world. Incorporation year 1994. Ownership group is HDFC Group. Headquarters Mumbai. Chairman, who is the chairman of HDFC? Mr. Deepak S. Parekh. The present head MD is Sashidhar Jagdishan and CFO is Srinivasan Vaidyanathan. ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे, इनको देखो, देख लिया आपने? अब इनको ढूंढो इस फोटोग्राफ में, मिल रहा है ये कहीं? Yes, correct. Do you remember this honorable personality? Yes, sir. Who is he? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऐसे बोल रहे थे, तुम कंचे खेलते थे उनके साथ, हैं? ऑनरेबल आर प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना? सो गाइस, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है ये। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हम लोग बेसिकली इसकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा मनमोहन सिंह जी को काफी लोग, ठीक है, मैं कोई कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हम लोग ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने देखा है, जो भी हम लोग मीम्स देखते हैं, तो ही इज कंसिडर्ड अ वेरी साइलेंट पर्सनालिटी, बट गाइस यू वोंट बिलीव इट, ही इज द मोस्ट लर्नड पॉलिटिशियन इंडिया हैज एवर हैड। ही हैज बीन एन आईएएस ऑफिसर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स इन इंडिया। और जब इंडिया चेंज हो रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे इंडिया में 1992 के अंदर, एलपीजी हो रहा था, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, एनीवे, लेट्स चेक इट आउट। In 1994, HDFC was incorporated with its registered office in Mumbai, and India, in its first corporate office and a full-service branch at Sandoz House, Worli, was inaugurated by the then Union Finance Minister, that is Dr. Manmohan Singh. The bank is the first of its kind to receive an in-principle approval from RBI for establishment of a bank in private sector. HDFC Bank Limited is an Indian banking and financial service company. The bank's distribution network is run through 4715 branches and 12260 ATMs and 2657 cities. HDFC is a market leader in e-commerce. It provides digital offerings like what? Digital offerings like 10-second personal loan. यानी आपको 10 सेकंड में पर्सनल लोन, यानी आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है, सोफा खरीदना है, 10 सेकंड में लोन करा देंगे हम तुमको। उनके पास और भी एप्स हैं लाइक चिल्लर, पेजैप, एसएमई बैंक, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बैंक, वॉच बैंकिंग भी है इनके पास, वॉच बैंकिंग, यस यू कैन यूज एचडीएफसी ई बैंकिंग विद द हेल्प ऑफ योर वॉच ऑल्सो। 30 मिनट ऑटो लोन, ऑटो है ना, 30 मिनट में ऑटो मिल जाएगा क्या? नहीं, ऑटो है ना, 4 व्हीलर कार लोन, 30 मिनट्स ऑटो लोन, 15 मिनट्स 2 व्हीलर लोन, ई पेमेंट गेटवेज, डिजिटल वॉलेट्स etc. HDFC Bank provides a number of products and services which includes wholesale banking, retail banking, treasury, auto loans, two-wheeler loans, personal loans, loans against property and credit card. Philosophy क्या है इनकी? सब कुछ है इनके पास। To be the world-class Indian bank, the objective is to build sound customer franchisees across distinct business so as to be the preferred provider of banking services for target retail and wholesale customer segments and achieve healthy growth in profitability consistent with the bank's risk appetite. HDFC Bank's business philosophy is based on 5 core values: operational excellence, customer focus, product leadership, people, and एक वर्ड बार बार आता है क्या? Sustainability. एक वर्ड बार बार आता है and that word is sustainability. Portfolio, क्या क्या बिजनेस है इनके पास? देखो, HDFC Limited, HDFC Securities, HDFC Mutual Funds, HDFC Realty, HDFC Life, HDFC Ergo, HDFC Pension, HDB Financial Services. तो गाइस, क्या HDFC इंश्योरेंस बिजनेस में है? देखो तो जरा, क्या HDFC इंश्योरेंस बिजनेस में है? बताओ। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, यहां तो इंश्योरेंस कहीं लिखा ही नहीं है। करेक्ट, वेरी गुड हर्ष, HDFC लाइफ। तो ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया। और अगर मुझे कार का इंश्योरेंस करना है तो एचडीएफसी का कार इंश्योरेंस होता है क्या? HDFC अर्गो,
दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. कार इंश्योरेंस इज कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस के लिए उनके पास है एचडीएफसी अर्गो. आ जाओ बिजनेस इन न्यूज. एचडीएफसी रैंक कितना रैंकिंग है, क्या है आज तक की सबसे बेहतरीन रैंकिंग है हमने जो पढ़ी हुई है. एचडीएफसी रैंक 116 ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट. कितने लोग, कितनी लिस्ट बनती है, कितने कंपनीज की लिस्ट बनती है? 2000. रैंक 116th. और बेस्ट एम्प्लॉयज लिस्ट में एचडीएफसी का रैंक है 77th. HDFC Bank has been adjudged India's best bank by Euromoney Awards for excellence 2019 for the 12th consecutive year. HDFC has won top honors at NASSCOM DSC Excellence Award 2019. HDFC Bank was adjudged the best MSC bank. MSC क्या होता है? Micro and Small Enterprises. The bank has strong and best MSC bank at second SIDBI ET India MSC Awards 2019. The bank has strong MSME portfolio with advances in this segment in a micro, small and medium enterprises at standing at advances. यानी जो लोन दिए गया है, कितना लोन दिया है? 1.25 लाख करोड़ लोन दिया है 2019 मार्च 31st as on. So guys, it's a big bank. उसका रैंकिंग आप देखोगे तो इतनी लोअर रैंकिंग हमने पहली बार देखी है, ठीक है, अब तक के हमारी पढ़ी हुई कंपनीज में. So HDFC Bank, we understand your world. राइट. एक और जायंट है जो एचडीएफसी के साथ ही बने हैं, तीन बैंक्स बनी है. एक तो एचडीएफसी बना और दूसरा एक बना एक्सिस बैंक. याद है एक्सिस बैंक? डू यू रिमेंबर? एक्सिस बैंक को बनाने वाली कंपनीज कौन सी थी? सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलकर बनाई थी एक्सिस बैंक. और तीसरी जो बैंक थी वो है आईसीआईसीआई. आईसीआईसीआई का कोई फुल फॉर्म लगता है आपको होगा? हाँ दुबे जी बोलिए. और दुबे कम ऑन. वेरी गुड सुयश. Industrial Credit and Investment Corporation of India. Let's check it out. Incorporation in 1994. The ownership group is ICICI Group. Headquarters in Mumbai. Chairman is Mr. Girish Chandra Chaturvedi. Present head is Mr. Girish Chandra Chaturvedi is the chairman. Mr. Sandeep Bakshi is the MD and CEO. And Mr. Rakesh Jha is the CFO. ICICI is India's largest private bank and a multinational banking and financial service company. ICICI has a network of 4867 branches and 4367 ATMs across India. The bank has branches in US, Singapore, Bahrain, Hong Kong, Sri Lanka, Qatar, Oman, Dubai, DIFC, Dubai International Finance Center, China, South Africa, and representative office in UAE, Bangladesh, Malaysia, Indonesia. The company's UK subsidiary has also established branches in Belgium and Germany. All right, it was originally promoted in 1994 by ICICI Limited, a financial subsidiary. ICICI पहली बार 1955 में बना at the initiative of World Bank. World Bank के initiative पे इंडिया ने ICICI बनाया था. Then vision to be the leading provider of financial services in India and made to be a major global bank. Mission: ICICI will leverage out people, technology, speed, and financial capital to be the best banker, to be the banker of first choice of the customer, delivering high quality, world-class products and services, expand the frontiers of business globally, play a proactive role in full realization of India's potential, maintain a healthy financial profile and diversify our earnings across business and geographies, maintain high standards of governance and ethics, contribute positively to various countries and markets in which it operates, and create value for the stakeholders. Beautiful vision and mission. Portfolio वही है क्या? आईसीआईसीआई इंश्योरेंस बिजनेस में बोलो सर. अभी टेंशन नहीं हमको, यहां आप जो दिखा रहे हो उसमें लिखा ही है. सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, आईसीआईसीआई वेंचर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आईसीआईसीआई फाउंडेशन एंड दिशा फाइनेंशियल काउंसलिंग. ये सारे उनके बिजनेसेस हैं. एंड फाइनेंशियल काउंसलिंग यानी लोगों ने अपने पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए उससे रिलेटेड. देन सेगमेंट्स: funds and investment, that mutual fund, deposit, portfolio management services. Banking product में saving account, home loan, family wealth account, car loan, foreign exchange service and demat account. इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस एंड रिस्क प्रोटेक्शन के अंदर लाइफ इंश्योरेंस, मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस होता है. देखो तो बताओ मुझे, आईसीआईसीआई का लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनीज कौन सी है? सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इज लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज जनरल इंश्योरेंस. वैसे एचडीएफसी में भी अलग अलग कंपनीज है क्या लाइफ और जनरल के लिए?
HDFC Life is for life insurance and HDFC Ergo is for general insurance. Credit cards, ICICI Bank Diamond Credit Card, ICICI Bank Sapphire Credit Card, Jet Airways ICICI Sapphire Credit Card. Banking services, mutual fund transaction platform, lockers, iWealth, iMobile, Smart Vault, eLocker, iTrack, video banking app, and preferred time delivery. And business banking, current account trade services, business loan, business insurance, and cash management services. Ranking देख लेता है ICICI की. ICICI ranked 182nd on the Forbes World's largest public corporation list 2021. ICICI ranked 65th on the Forbes World's best employee list. तो अगर आप बैंकिंग देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर में वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन में आईसीआईसी और एचडीएफसी की काफी अच्छी रैंकिंग है इन रिलेटिव टू अदर कंपनीज इन इंडिया. व्हाट से? एंड विद द कंपनीज दैट वी विल स्टडी इन टाइम्स टू कम, ये रैंकिंग और बेटर होने वाली कंपनीज हमारे सिलेबस में होगी. ICICI Foundation was awarded by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship at the National Entrepreneurship Award. ICICI crossed milestone of issuing 2 million FASTag, highest in India, by October 31st. ICICI Rural Self-Employment Training Institute, which provides free of cost vocational training to less privileged youth, inaugurated a new building in the Jodhpur city. The building has been awarded a net zero energy platinum rating by Indian Green Building Council, making it the first new building in the country to get the coveted, यानी बहुत ही prestigious certificate मिला उनको कि ये बिल्डिंग में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होता, खुद ही एनर्जी बनाती है और खुद ही प्रोड्यूस करती है. इट्स जस्ट लाइक अपने घर पे तुम सोलर पैनल लगा लो तो तुम्हारा जो बिल जो 15-20 हजार रुपए आता था पर मंथ, सोलर पैनल लगाने के कारण अब वो जीरो आता है. तो तुम्हारा घर क्या बन जाएगा? ग्रीन बिल्डिंग, तुम्हारा जीरो एनर्जी प्लैटिनम रेटिंग मिल जाएगी तुम्हारे घर को. ICICI Bank launched InstaBiz, India's first most comprehensive digital banking platform for MSME in July 2019. तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए InstaBiz हाईलाइट कर लो, एमसीक्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन है. InstaBiz नाम का बैंकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्होंने लाया है मार्केट में. So that was all about ICICI Bank, and yes, we are done with ICICI, HDFC and डॉक्टर रेड्डीज. और कौन सी कंपनी करी हमने मेडिसिन वाली? सिप्ला. और एक महारत्न कंपनी करी हमने, कौन सी? कोल इंडिया लिमिटेड. महारत्न. एक और महारत्न करी हमने, कौन सी? भारत पेट्रोलियम. परफेक्ट गाइस, मैंने आपको एक लिंक दी है, कृपया उस लिंक पे आ जाइए. नो 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 नो. All right, it seems everyone is already there. All right, here we go. Shall we start, guys? Yes, sir. All right, come on, join fast. Come on, guys. Everyone in? Who else is left? Come on, join in fast. Shall we start, guys? Sarang, Atharva, Harsh, Bhavna, did you join? Nupur, Om, Aditya, Zain, Prathamesh, did you join? Yes, sir. Prakriti, are you there? Yes, sir. Come on, a couple of students are still missing. Come on, guys. Yes, sir. Yes, sir. Ninad, are you there?
All right, guys, here we go. First question. PayZapp is an app of Axis Bank, ICICI Bank, HDFC, SBI. All right, the time is up. The answer is HDFC. अभी तो पढ़ा है हमने ये. Let's check out the leaderboard position. Stinglicious, Niranjan, Prakriti, and all the three of the toppers did give the correct answer at the same time. Prathamesh, Snehal, Ananya, Gunjan, Nupur, Riya, and Atharva Sumant. Well done, guys. Stinglicious, may I know your good name? Sir, Advait Dhare. Advait Dhare. Okay, Advait Dhare. Okay, well done, Advait. Next question. Here we go. Go for the kill, guys. Headquarters of Dr. Reddy's is in मैंने आपको पहले ही कहा था हर कोई मुंबई करने की कोशिश करता है दिल्ली भी कर लिया काफी लोगों ने वेरी नाइस डॉक्टर रेड्डीज का हेडक्वार्टर्स इज इन हैदराबाद a lot of students have done it correct let's check out the leaderboard position prakriti is first nehal is second gunjan is third chinmay parth karan kalpesh yup who is yup may I know you and parth and prathamesh so guys prakriti and karan were the fastest in this question well done. Here we go. Shall we go ahead with the third question, guys? Here we go. Deepak Parekh is the chairman of which company? Cipla, HDFC, ICICI, BPCL. The answer is HDFC. So अभी तो हमने पढ़ाया हमने जब HDFC बन रहा था तब मैंने आपको दीपक पारेख जी की दो फोटोग्राफ्स दिखाए 1994 वाला एक फोटोग्राफ और एक्चुअल फोटोग्राफ एज ऑफ टुडे एनीवे कोई बात नहीं आई होप इसी बहाने आपको याद हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में लेट्स चेक आउट हर क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड पोजीशन चेंज हो रहा है तो स्नेहल आई गेस वाज द फास्टेस्ट इन दिस क्वेश्चन नो रिया वाज द फास्टेस्ट वेल डन रिया स्नेहल इज फर्स्ट इन माय सेकंड पार्थ रिया कल्पेश गुंजन भूमि सेजल मृण्मय एंड भावना वेल डन गाइस लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी गो ICICI Bank ranked what dash on the Forbes world's largest public corporation list 2021 182nd 177th 800 and 282nd and 277th ये मुश्किल होगा थोड़ा मैं all right the answer is correct 182nd a lot of students have done it I do not know how you remembered this but I just hope आपने नोट डाउन किया होगा जो मैंने आपको कहा था I guess that could be the thing so guys देखो याद रखने वाले याद रखते हैं काफी लोग कहते हैं इसको भी याद रखना पड़ता है क्या याद रखना यू नो 50-60% इस चैप्टर स्टूडेंट्स इस चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे स्नेहल वाज द फास्टेस्ट चिन्मय सेकंड पार्थ कल्पेश भूमि गुंजन पिछले बार के जो हमारे क्विज विनर्स थे जिनको गिफ्ट हैम्पर घर पे गया दिवाली के वक्त निनाद एक भी बार लिस्ट में नहीं आया सो गाइस एवरी डे इज अ न्यू डे you the, so guys every day is a new day you can always take your opportunity anyway let's check out the last question here we go Snehal you have everything to lose you are the topper BPCL was incorporated in the year 1915 1952 1992 and 1994
Alright, the correct answer is 1952. And let's check out the final leaderboard position. So the final leaderboard position tells us that Snehal should be the winner, and rightly so. Yes, Snehal is first, Chinmay second, Bhumi is third, Kalpesh, Gunjan, Parth, Mrunmay, Sejal, Soumya, Prakriti. Well done, guys. Alright, many congratulations, Snehal, and आई होप इसी तरह बढ़ेंगे. और मैंने जिस भी क्वेश्चन, जो भी हमने क्वेश्चंस हमने कवर किए, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूं इसमें, मैं ये नहीं कहता कि ये एग्जाम्स में आएंगे, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे. एंड लेट्स होप दैट वी शुड बी रेडी फॉर देम. ऑलराइट गाइस, शैल वी कॉल इट अ डे? Alright guys, thank you so much. Thank you for joining me. This is Bang Gogo signing off from yet another lecture. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.